Hello and welcome back to Willow and Stumps. Today we are excited to welcome on our channel one of India's leading sports presenter, Arjun Pandit. Sir, thank you for being here. We look forward to discussing your experience and your path in sports media. To begin with, I would like to ask you, okay, how did you first fell in the sports love with sports broadcasting and presenting? सबसे पहले ये जो चिट्ठा अपने सामने रखा हुआ है और जो चिट्ठे के ऊपर आप अपनी आंखें लगा के तान के आप निशाना मार रहे हो, मेरे भाई, अगर इस फील्ड में काम करना है तो इस चिट्ठे को छोड़ दो। मुश्किल आएगी, गड्ढों में गिरोगे, फंबल करोगे, गलत चीजें बोलोगे, नो प्रॉब्लम, बट इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ, एंड आई क्रेडिट, sorry, yeah, I'll answer your question. Firstly, हाँ guys, हाँ thank you so much for having me here, and it's a pleasure to be on your podcast. And आप लोग मुझे समझा रहे थे what your ambition is, what your mission is. I think it's a very noble mission, and I'm guessing over the course of this conversation, we'll talk about that mission as well. But before I answer your question, because आप ये बोल रहे थे ना, दिमाग में एकदम से आ गया, क्योंकि आप वो पढ़ रहे थे, मैं दिख गया था। एटलीस्ट मैं ये काम करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ ये, कि मैं एक शो कर रहा था और पहले मैं भी न्यूज़ वाला बंदा था। न्यूज़ में क्या होता है कि जी, न्यूज़ में वो प्रॉम्प्टर नाम की एक चीज़ होती है, और फिर प्रॉम्प्टर ने जो बोला है इंसान बोलेगा, so in a way you're handicapped by that prompter. हाँ And news works like that because it's an everyday thing. You're on, there's no space to breathe. You're always going chasing. And in news, you're not just, the kind of presenters that we are now. We guys are pampered souls. In news, आप बाहर भी काम कर रहे हो, आप स्टोरी भी चेज कर रहे हो, आप स्टोरी भी लिख रहे हो, आप स्टोरी एडिट करवा रहे हो, और फिर आप जाके आप you're going and presenting that story to the audience as well. So news is a tough job. You can understand that. But जब मैं आया वापस स्पोर्ट्स की दुकान में, proper sports, तो एक शो में, because I was so handicapped, one person came and told me, I will not let you use the prompter. Stop using the prompter. And I was like, eh? Because it was my natural, this thing, tendency was कि जी prompter लगाओ, मैं आराम से लिखूंगा और मैं अपना बोल दूंगा। पहले 2-3 हफ्ते मेरी बैंड बजी, बहुत गंदी बैंड बजी। और मतलब कभी कभी तो बहुत बकवास करी है लाइव शो पे, वो भी मतलब लाइव पे तो there's no going back. But over the course of that time, you got used to thinking for yourself. You got used to getting those words out. जब तक आप अपने आप को फोर्स नहीं करोगे उस हैंडीकैप से निकलने के लिए, those words will not come in your mind, right? You've written about something, so the words are there. It's not that you don't know the words are there. But to get them out naturally in an environment like this, आपको घुसना पड़ेगा। और फिर एक बारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वो जो मैंने आपको भी बताया नहीं, वो है ये कि I became all right and I became very natural and accepting of making a mistake. टीवी पे क्या होता है ना कि कोई हड़बड़ा रहता है, कोई गलती कर देता है, कोई फंबल करता है, कोई 19 को 20 बोल देता है, कोई 20 को कुछ और बोल देता है, तो हम उस टाइम पे हिल जाते हैं। वो 2-3 सेकंड के लिए बंदा हिला होता है, राइट? एंड देन समटाइम्स पीपल डोंट रिकवर फ्रॉम इट, स्पेशली द ऑडियंस पिक्स इट अप वेरी क्विकली, फट, वो ये गलती कर गया। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, द एबिलिटी टू ओन दैट मिस्टेक, and then move on from that mistake by saying that you're human, and as human beings we were not born into this world as encyclopedias and so on and so forth. That is the biggest learning from that. So start forcing yourself in these environments. Start forcing yourself to understand the subject, understand the soul of the subject, what you want to get out of this chat, and then force yourself to say something. No problem. गलती करेंगे फिर रिकॉर्ड करेंगे, गलती करेंगे फिर रिकॉर्ड कर लेंगे, but you'll get it. You'll understand and you'll get it. So I hope that was fine कि मैंने आते ही आपको ज्ञान का भंडार आपके सामने रख दिया. But as far as this field is concerned, यार, it's a very natural trajectory कि जो भी हमारे इस माध्यम में आया है और इस फील्ड पे काम करता है, उनका स्पोर्ट से कहीं ना कहीं को रिश्ता होता है. So that pure innocent love for sport is can be seen with everyone who's working in this field. Your first step is that I love sport in some form or the other. I love watching sport. I love playing sport. For me, it was playing sport. मैं बहुत फुटबॉल खेलता था. I had ambitions of becoming a football player. It didn't really turn out to be the way I wanted it to be. But I learned a lot from it. I went and tried my hand at playing some football professionally as well. I wasn't good enough. So the next best thing was I said, यार, मैंने पूरी जिंदगी स्पोर्ट्स के बारे में ही सोचा है. मैं luckily I was very clear in my mind
I had there was clarity in my head. I feel best and I feel most at ease when I'm in a sports environment. Sports के environment में हूँ तो मैं कुछ I feel really at ease. So luckily my parents understood that कि ये नालायक है, इसको और कुछ आता नहीं है. So there's no point pushing him to go somewhere else also. And so I said, what's the next best thing? I thought, okay, why not work in channels that talk about sport? Where the whole conversation in a building or in a desk is about sport. चलो कोई नहीं, आप खेल नहीं रहे, that would have been the best opportunity. नहीं खेल रहे, but ठीक है, the next best thing would be to be around people in an environment surrounded by people who are only talking sport. And so luckily, my father knew some people at that time, and जी स्पोर्ट्स एक चैनल था. वहाँ पे उन्होंने कहा जी ये लड़का पागल है स्पोर्ट के बारे में, लेकिन ये ब्रॉडकास्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानता. So you would do me a favor. I'm not asking you to pay him money. Don't pay him money. Just keep him. And he's a smart kid, and hopefully he picks up things very quickly. And as luck would have it, that boss at that time of mine was Gaurav Behel, who I'm in touch with now because his wife afterwards was my boss in NDTV as well. And वो सिलसिला रहा है यार 14-15 साल का. आप ठोकर खा के ही आप यू स्टम्बल अपॉन समथिंग, ये इतिहास है इस फील्ड की. इस फील्ड का कोई फॉर्मल वो नहीं है. देयर इज नो फॉर्मल इन. देयर इज नो थिंग कि मतलब आप इतनी पढ़ाई कर लो जैसे आपका एक होता है, उतनी पढ़ाई के बाद एक आपके प्लेसमेंट लगेगी फिर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट. None of that is there at all. So it's just by chance, right place, right time, and sometimes just knowing that this is what I need to do. And luckily it all worked out. Brilliant, sir. So, first of all, I'd like to tell you that while walking in this field, right, Hmm. while finding your way in this field, you might have had conversations with world-class athletes, right? And I think that sports is the closest parallel to life with the ebbs and flows that it I agree. provides. And so, the one question that I would like to ask you is that what life lessons did you learn from those world-class athletes? You can name a few instances or examples as well. Yeah. Yeah, that's a heavy loaded question, first and foremost. I'll tell you something. In terms of broadcasting, there's one instance that remember very well. Generally, ना मैं तो अपने आप को glorify करता नहीं. I like talking about my mistakes, and I like owning up to them on camera as well. There used to be a coach in football. He was the head coach of the Indian football team. His name was Bob Houghton. He was one of the most successful coaches that we've had in India. And so Bob was, at that time I was working for Z Sports, जैसे आप लोगों को अभी बताया. And I was heavily invested into football. I was like, I was a player. And so I used to always feel like मेरी एक analysis है, बड़ी तगड़ी analysis है, तो बहुत emotionally invested होता था, which is not always great if you're behind the camera or in front of the camera or something like that, because you've got to sort of manage the emotion. You can't let your emotion decide what you want to say. There has to be a certain sense of balance to it, क्योंकि आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे. So when once they were playing a match at Ambedkar Stadium and Bob had fielded a team, और उस टाइम हमारे जो भाई हैं सुनील छेत्री, उसको उन्होंने बेंच पे बिठा दिया और उसको वो लाया था. आई थिंक वो 75वें मिनट या 76वें मिनट में भारत वो मैच हार गया. तो आई हैड टू डू द पोस्ट मैच इंटरव्यू. This was not a show. I was on ground, and as soon as the game is over, the coach comes to me, ठा 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 ठा, वो जो चलता है, right? So at that time, जो coach भी होता है वो अलग energy में होता है. You've come in, the game has just gotten over. You've not gotten out of that entire space, and you lost the game. तो वो भी चढ़ा हुआ था और मैं भी चढ़ा हुआ था अपनी जोश में. तो मैंने आती पहले कहा, why did you not play Sunil? Don't you think you could have won this game if you would have started the game with Sunil? And he just looked at me like this, like dead, like that. And he said, don't you think you're getting a little too carried away? बस. दैट टाइम मैं सुन हो गया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था. मैं भूल गया मुझे क्या कहना था, क्या बोलना. वो नहीं होती वो नॉर्मल ट्रैजेक्टरी. You start fumbling and all that thing. And he knew he had me. And he was correct also, because you can't get so emotional. So my learning from there was, at least in my field and for life, that while you might be so emotionally invested and you're so close to some subject, a bit of distance, a bit of perspective is always a good thing. There's nothing wrong with it. Because we are such a subjective race as human beings,
1, 2, 3. There are 3 people on this chat. All 3 might have a different opinion on Shubman Gill. अच्छा कप्तान है, बुरा कप्तान है, अच्छा प्लेयर है, बुरा प्लेयर है, कहाँ खेलता है, अच्छा खेलता है, जो करता है, ठीक है। और वो आप सब तीनों के अपनी अलग अलग रीजंस हैं भाई। अब मैं जितने भी बंदूक लगा दूं आपके ऊपर कि ना जी ना, यही बोलना है, आप नहीं मानोगे, because it is such a subjective thing, it is so close to you. So a bit of distance when analyzing sport or when analyzing anything is God sent, I feel. If you manage a bit of distance, it is God sent. There is no doubt about it. So that was one thing from, of course, Bob Houghton. Now the other one, yeah, remember life lessons, if I could get. यार विराट कोहली के साथ इंटरव्यू किया था एक, and विराट कोहली के साथ that the interview, this I learned once. Like I was doing a chat with Virat in England. We had gone to do 2017 Champions Trophy. तो वहाँ पे there was a dinner that they had done. तो हम लोग गए थे उसको cover करने के लिए. And he had given us time to do a one-on-one interview regarding the dinner, and of course then we'll talk about life and cricket and so on. And at that time, उस इंटरव्यू से पहले, because I had never done a chat with Virat before this, क्योंकि हमारे भाई जतिन सप्रू को एक्चुअली करना था वो इंटरव्यू, और भाई को उस टाइम पे टिकट पकड़ा दी गई थी, भाई दिल्ली जा रहे थे। तो मैंने कहा भाई अच्छी बात है, थैंक यू, क्योंकि मेरे को मौका मिल गया। So I see them. I said, very nice to see you, Nago. And there, because I had never done a chat with Virat, the channel got a little, how do I say this, कि ये कर पाएगा कि नहीं, you know what I'm saying? This is यार 17 हो गई भाई, कितने टाइम हो गया ये, 8 almost साल 8 years back, हाँ 8 साल। तो वो थोड़े इनसिक्योर थे, और जब जो ओनर होता है या जो भी डिसीजन मेकर होता है, जब वो थोड़ा इनसिक्योर होता है ना, देन दे ट्राई पुटिंग अ बिट ऑफ कंट्रोल ऑन टॉप ऑफ इट, कि जी ये पूछ लेना, वो पूछ लेना, ये पूछ लेना, वो पूछ लेना, आराम से काम। सबसे आसान काम है ना, कि मेरे सामने चिट्ठा आ गया, उसने ये बोल दिया, उसने जी कुछ भी बोल दिया, मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैंने दूसरा सवाल पूछा, ये बोल दो सर, अच्छा इंटरव्यू गया, चलो जी, नो प्रॉब्लम व्हाटएवर। बट आई डोंट नो, मैं थोड़ा सनकी टाइप आदमी हूँ, एंड मोर ऑफन देन नॉट जब मुझे कुछ कोई बोलता है कि राइट पे जाना है, and without too much explanation or authority, and when it's just sort of questioning your faith in me, and there's nothing wrong in it, I more often than not go left, not out of anything but out of spite, कि मैं देखी जाएगी, चलो ये मेरा लाइफ का मोटो है, देखी जाएगी। So I don't know what happened, मेरे को पूरा चिट्ठा आया था इंटरव्यू तक, एंड मेरे को इन द बिल्ड अप टू द इंटरव्यू आई हैड प्रिपेयर्ड ऑन माय ओन कि मैं क्या पूछूंगा, कैसे करूंगा, where I'm going to go. I'm going to do an interview where is not going to be the usual kind of interviews where we're only talking about milestones. We'll talk about failures. We'll talk about the building up to a big level, right? And so I prepared it like that. But चिट्ठा आ गया, तो बॉस का यहाँ चिट्ठा है और मेरा चिट्ठा यहाँ है, और भाई आ गए। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा हटाओ इसको यहाँ से, and I went with my interview, right? And I went and I did my entire interview, and the interview was superb. I thought it was a very good interview. Virat also said in that interview, यार ऐसे सवाल मुझे किसी ने पूछा नहीं ऐसे पहले. And in that interview, he had also mentioned about Anushka. So he never publicly spoke about Anushka at that time. First time he mentioned about her as well. So that interview got picked up by a lot of people. And so it was a successful interview. And the lesson there was this, कि भाई कभी कभी ना अपनी gut feeling को back किया करो. We tend to take it too lightly at times. Yeah, you know. And even if you go wrong, it doesn't mean it's a bad thing. It's fine. No worries, यार. क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नौकरी चली जाएगी, कहीं और पकड़ लेंगे। सिंपल लाइफ का मोटो है, देखी जाएगी, सिंपल सी बात है। तो गट फीलिंग को बैक करा करो यार। इट्स द सेम थिंग विद स्पोर्ट्समैन एज वेल, यू हैव टू बैक योर गट फीलिंग, राइट? देयर विल बी सो मेनी पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल बी लुकिंग एट इट, ये हमारे पास ये एनालिटिक्स है, हमारे पास ये स्टैट्स है, हमारा ये बता रहा है, वो बता रहा है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अबे इतना आसान होता तो कंप्यूटर ही खिला दो वहां पे, यू नो आई एम ट्राइंग टू से। Point is, it's your gut feeling. Sport is about reacting. You are reacting to a certain thing. And when you're reacting to a certain thing, your best way to react to a certain thing is when you're completely free over here. Right? Because when you're free over here, it's your muscle memory that takes over, automatic muscle memory that takes over, because all your life,
you've reacted to a certain thing. Ta, 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 ta. So that's the best way to react to something, when you just leave it completely free, natural. You put in the work. Now have faith in it. It will come. On a day when it doesn't come, it doesn't mean you're not putting in the work or you're doing something wrong. Keep going at it. There'll be days when they'll win. There'll be days when you'll win. You can't win everything. I keep telling my daughter, she's 5 years old and she's very competitive. And जब वो हारती है ना, उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो गेम छोड़ के चले जाती है, या वो उठा के कार्ड सारे उठा के चले जाती है. ऊनो हम लोग खेलते थे. तो ऐसे, लिसन, इफ यू वांट टू प्ले स्पोर्ट, बिफोर विनिंग, learn how to lose. When you can learn how to lose, then the next day you will get up again, you'll train and you'll go try and win. So these are some of the lessons यार. ऐसे और कोई अगर मुझे याद आएंगे मेरे भाई, that's a good question. I'll keep popping them during this chat. Sure. आपने बात करी कि आपने विराट कोहली से मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के पहले बात नहीं करी थी, इट वाज योर फर्स्ट इंटरेक्शन. तो कभी आपको Yeah. एज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग मैनी पीपल, मतलब एक तरह से आप फैंस की वॉइस हो, आप अपने प्रोड्यूसर्स जो होते हैं शो के, उनके बिहाफ पे आप उनसे बात कर रहे हो, तो एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आपको फील होता है व्हेन यू टॉक No, टू लेजेंड्स लाइक दिस? not at all. Not at all. क्यों भाई, अपने ऊपर वो प्रेशर क्यों लेना है मैंने कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मैं किसी को नहीं रिप्रेजेंट करता. ओके. See, I'm telling you, हाँ मोस्टली क्या होता है कि जब आप कैमरे को देख रहे हो ना, हाँ अगर आप सोचने लग जाओगे कि 1 करोड़ लोग मुझे बैठ के देख रहे हैं, हाँ. आवाज नहीं निकलने वाली. हम्म. अगर आप बस कह रहे हो कैमरा एक बंदा है, मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, प्रोड्यूसर को जैसा भी लगे, जो भी लगे, प्रोड्यूसर और मेरी कभी बनती नहीं है, बिकॉज द थिंग इज, इट्स एट द एंड ऑफ द डे, इट्स एन आइडियोलॉजी थिंग यार. हाँ अगर मैं सन की आदमी हूँ एंड आई एम वेरी सेट इन माय वे कि ऐसे होता है, और वो अपने सन की तरीके से कह रहा है ऐसे होता है, तो क्लैश तो होगा. फिर वो मिलन आता है बीच में कहीं ना कहीं कि मैं तेरा थोड़ा ले लेता हूँ तो मैं अपना थोड़ा कर लूंगा. But the point is, this whole responsibility thing of I'm representing, don't ever do that. Because then you're just going to eat yourself up from inside. That's what I said right now. Keep yourself free. भूल जाओ. अरे तुमने अगर कोई, चलो शो कर रहे हो, किसी के साथ कर रहे हो, चलो तुमने नहीं करी पढ़ाई कि उसने क्या किया है, कितना किया है, कौन सा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं. Keep yourself free, because then whatever that person is saying, and if you're free over here and you're listening to what that person is saying, the mind in itself will tell you, okay, we can go here, we can do something here. The power to react, right? Very early, not early on, this was courtesy of my time at Sony. Like उससे पहले जब काम कर रहा था ना, वही होता था. There used to be that pressure at times. अरे वो नहीं होता, आप अगर suppose you're going in to do a show, right, and your friend, both of you are talking to each other. Now imagine your friend is coming to you and saying, अरे कर पाएगा, भाई शो कर पाएगा, 100% कर लेगा ना, गलती तो नहीं करेगा ना, सब ठीक होगा ना. आप गलती करोगे मेरे भाई, आप 100% गलती करोगे. So avoid all that बकवास. You know you've done your crap. You know you've done your shit. Back that. Believe in that. It's as simple as that. आ जाएगा. Is there. If you're in love with sport, और आप जिंदगी भर स्पोर्ट देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, इट इज पार्ट ऑफ योर नेचुरल डेली हैबिट. कभी अखबार पढ़ रहे हो, कभी न्यूज पढ़ रहे हो, कभी मैच देख रहे हो, वो कहाँ जा रहा है? भूसे में ही जा रहा है ना अंदर, यहाँ पे. तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा. पर वो निकलेगा कब? जब उसका ताला खोलोगे, आप बोलोगे निकल. और वो ताला कभी, a lot of people make mistakes on TV, at least I feel, is that we tend to over prepare. हमारे फील्ड में मैंने बहुत लोगों को देखा, अरे भाई ये चिट्ठे आए हैं, ये मतलब इतना तो बंदा नहीं जानता जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हो कि भाई उसने पूरा चिट्ठा निकाल दिया उसका वहीं पे, which is fine, सबका अपना तरीका है. But I realized this at Sony, that the power to react to what someone is saying. My job is to not give you the encyclopedia on the person. My job over there is to make the person who has come, the cricketer, A cricketer, B cricketer, C cricketer, is to make them feel comfortable. Is to make it a space जहाँ पे वो खुल के बात कर सकते हैं, उनका मन कर रहा है. क्योंकि अगर आपने उनके ऊपर एक एग्जाम वाले वो सवाल पूछ दिया ना, वो उसका भी दिमाग बंद हो जाता है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं. बट अगर आपने माहौल बनाया, बातचीत हो रही है, उसका भी दिमाग खुलेगा ना भाई. उसके अंदर भी तो एक शैतान है. देखो जी, खिलाड़ी जो होता है वो नॉटी होता है कि नहीं? खिलाड़ी की एक पुरानी वो होती है, तो नॉटीनेस बाहर आती है, खुलता है बंदा. पर जब बंदा खुला नहीं होता, ऑल दैट नॉटीनेस, एवरीथिंग इज गॉन.
So I very early in Sony I realized if I just listen to what you're saying and I don't over prepare, of course I prepare. There are certain few things I should be knowing what's happening, but beyond that I don't need to do it because I've been doing this for so long. So कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ, even if I've not prepared it 2 days before that said show, but I will pay attention to what you guys are saying, and when you're saying that I will also partake in that, and then that proper jugalbandi starts, ta 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 ta, then that conversation comes out. Otherwise it's just a question answer round कि जी आपको कैसा लगा, बड़ा बड़ा अच्छा लगा, उनको कैसा लगा, बड़ा अच्छा लगा, ये बात होगी खत्म. There's no this thing. So all these things come with time, yeah. I'm not saying I'm God sent or anything like that. I have gone through that very same trajectory because this is that field जिसमें आप एकदम नंगे आते हो, आपको कुछ प्रेप है ही नहीं. तो एक ट्रेजेक्टरी होती है कि जी आके मैंने गलतियों का भंडार करना है, पूरी दुनिया ने मेरे को जज करना है कि ये कौन उल्लू का पट्टा है कैमरे के सामने, इसको कैसे कैमरे पे बिठा दिया. तो वो पहला वो फेज होता है, तब कोई आपको जज करते हैं. फिर एक बीच का फेज आता है where you find yourself, where you find yourself and you find comfort in who you are, in how much you know, in how you talk. और फिर उसके बाद आता है खाने वाला फेज, where जब आप शो करने जाते हो, जो आपके साथ बैठा वो भी जानता है कि this guy knows how to do his thing, and then starts. Like I saw it, I did a show, India England series कर रहे थे अभी जो हुआ था, and Gaurav and I were both hosting shows. Gaurav Kapoor. And जब बीच में both Gaurav and I were doing shows together, I was seeing the way that when Gaurav sits, and because Gaurav has that body of work behind him, and it's a very solid body of work, that when he sits and the other cricketers come, there is a different vibe, totally different vibe. No one has said anything, but it's purely because you've come, you've seen this guy, and you've seen the kind of work he's put out and the way he does his work. But so suddenly it's a conversation between equals. I'm not saying Gaurav is some Turram Khan cricket, but it's a conversation between equals. अभी क्या होता है, कभी-कभी जो cricketer आता है and the other guy who's overawed, if I already show to you that I'm overawed, and the cricketer that comes, then it's not a conversation between equals. It will not. Then it'll be more like जो मैं कह रहा हूँ, the cricketer is God sent. You will just do yes, yes, yes. I will go to the next question, and then no, yes, yes, yes. That's not a conversation. That's just a, आपने पूछा मैंने बोला, आपने पूछा मैंने बोला. A conversation between equals is okay. I don't agree with you. How? Ta 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 ta. That is, and that comes with time. It comes with time. It takes for me at least. It comes easily. It's about 8 to 10 years into the job that you understand that this is the way it's done. तो सर टू कंटिन्यू, मतलब हमने हाँ बहुत जी. सारी बात करी, आपने भी बताया कैसे प्रोड्यूसर से आपकी बनती नहीं है. तो हम्म. हम ये मतलब मैं नहीं, मेरा कुछ ये. कुछ अच्छे वाले हैं, अच्छा. कुछ हैं बंदे, मतलब अच्छे अच्छे तो ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब हाँ, जो मेरे मतलब मैं साथ यही कह रहा थोड़े हूँ कि मिल जाते हैं मेरे साथ. आप जब कमेंट्री कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर आपके कान में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, नेक्स्ट पॉपअप क्या आने वाला है, नेक्स्ट ग्राफिक क्या आने वाला है. एंड या बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यू आर मैनेजिंग कि यार ग्राउंड पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है, ग्राफिक क्या आ रहा है. तो ये जो चैलेंज है उससे कैसे काउंटर करते हो आप? बाय हैबिट. प्रोड्यूसर्स राइट इन देयर ओन वे. उनका काम है. सी, कमेंट्री प्रोड्यूसर एंड शो प्रोड्यूसर आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. कमेंट्री प्रोड्यूसर इज बेसिकली, आप बात कर रहे हो तो कमेंट्री प्रोड्यूसर इज जस्ट सिंपली टेलिंग यू, अच्छा ये इसका एक माइलस्टोन आने वाला है, इसने इतने में बना लिया, क्योंकि उसका स्टैटिस्टिशियन बैठा होता है, राइट. तो वो आपको बताया था, ही जस्ट गिव्स यू अ नज. अच्छा, हिज 41st or 40th 50 is coming up or whatever so is coming, he's had so many runs in this year, so you can just add more depth to when you talk about that player. Or there's a graphic coming up, or there's a sponsor commitment coming up, be ready for this, right. ये कमेंट्री प्रोड्यूसर है. जो शो प्रोड्यूसर है, कि शो प्रोड्यूसर शो बनाता है, वो प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द डे शो तैयारी करता है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो शो की तैयारी प्रोड्यूसर करता है, एंकर नहीं करता. वो मेहनत वो करता है, ठीक है. एंड इसीलिए यू कैन अंडरस्टैंड कि वो इतना इन्वेस्टेड होता है शो में, कि जी मैंने ये सब तैयारी करी है, अब मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, विच इज़ फाइन. बट देन जो उसने आपने अगर सिर्फ मुझे बुलाया वहाँ पे पुतले की तरह खड़े होने के लिए, और जी जी हजूर करके हैंगर की तरह कपड़े बना दो मेरे को, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, राइट. यू मेड योर शो. नाउ व्हाट यू नीड टू बी हैविंग इज faith in me that I've understood what you're trying to get out, and then leave it to me, right. तो वो कभी कभी होता नहीं है, because at the end of the day human beings, we're, you know,
faith is not something that comes easily to us. Me trusting you will not come with me trusting you right now straight away, right? No matter what your good intentions might be. It'll come with you doing something and making me change my mind, or me doing something and you making you change your mind. तो वो थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज इट्स अ कमिंग टुगेदर लॉट ऑफ पीपल, तब एक शो बनता है. तो उसमें हर बारी डिसएग्रीमेंट्स हर वक्त होती है, देयर इज नो डाउट अबाउट. बट एज फार एज जो जो भसड़ आप कह रहे हो, आई टेल यू द नंबर ऑफ वॉइसेस इन माय हेड. व्हेन आई एम डूइंग अ शो, देयर इज द डायरेक्टर, देयर इज द प्रोड्यूसर, एंड इफ देयर इज अ डायरेक्टर who latches you on in the sense that एक लैच होता है कि वो बटन दबाता है and he says okay next camera. कुछ कुछ लेजी डायरेक्टर्स होते हैं who just keep that button down, so they don't have to keep on doing this. तो देन जो पीसीआर में कंट्रोल रूम में जो पूरा एक वो मलीदा बन रहा होता है, क्योंकि वहां पे लाइक अ शाउटिंग मैच, ये डालो वो डालो वो डालो, वो सब चल रहा होता है. देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव 3 guys in front of me who are looking at me and thinking that I'm hearing every word they say. So surely a lot of times it happens and still happens. If there's just too much noise, you just simply say, "क्या हो रहा है भाई? Do you want me to listen to them? I think it's a lot important that I listen to them. I have a good conversation with them. So can you lower the noise there?" And even then, अगर नहीं होता, which is the case a lot of times, then you have to sink or swim. Simple सी बात है. तो जितना करोगे तो फिर ऐसे एक कान रखा होता है कि लेफ्ट पे आपके वो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तो आप ऐसे कान लगते हो. एंड देन बिकॉज इंसान भी तो आदत का खेल है ना भाई. आदत अगर डाल लेते हो कि मैंने लेफ्ट से ही अभी सुनना है ज्यादातर, तो फिर राइट में जो गंद चल रहा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. मैं बता रहा हूँ. सो देन यू स्टार्ट डूइंग दैट. और कभी कभी मिस हो गया तो मिस हो गया, नो प्रॉब्लम. जो होता है सो होता है. फिर जब मिस हो जाए तो पब्लिकली बोलो तुम्हारी गलती है. ये जो प्रोड्यूसर टाइप लोग हैं जो पीसीआर में इतनी आवाज चल रही है, बट ऐसा नहीं है. मतलब दे ऑल, एवरीवन इज हाईली स्किल्ड एट व्हाट दे डू. And disagreements is a good thing, but these things keep happening, man. You get used to it with the voices in your head and you move on with it. But I've seen so many people struggle when they're not used to it. Then initially when they come और खड़खड़ खड़खड़ आवाजें चल रही होती हैं, वो हिल जाते हैं. They forget what they're saying. वो चुप हो जाते हैं. And you're like, क्या हो गया भाई? And live show चल रहा है. And you kind of understand what happens. You take over and you take off from there. But it comes with time. It's just habit, nothing else. और जैसे हमने ऑफ स्क्रीन हमारे कॉन्वर्जेशन से पहले बात करी थी कि यंग क्रिएटर्स लाइक अस जैसे जो भी Hmm. स्टेप इन नहीं कर रहे हैं इस फील्ड में, तो आपने बोला कि एंड देयर आर plenty of people doing this analysis वाला thing, so do Hmm. something new. तो we told you कि हम लोग क्या कर रहे हैं exactly, and तो आप कोई ऐसा देखते हैं कि नया चीज़ जो currently मार्केट में नहीं है आना चाहिए, या फिर आप करना चाहते हो कि आप लेके आना चाहते हो अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, ऐसा कुछ? यार मैं ना, यार ऐसा तो आई फील राइट नाउ द इजीएस्ट थिंग टू डू इज टू रिएक्ट टू न्यूज़ और डू एनालिसिस. एंड आई डोंट मीन डिसरिस्पेक्ट इन दैट सेंस. आई मीन वो भी एक धंधा है भाई, क्योंकि उसमें यू हैव टू बी स्विच्ड ऑन. हम्म। स्विच्ड ऑन इन द सेंस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है. एंड यू हैव टू कीप ऑन गिविंग समथिंग और द अदर. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञान फैलना है आपने, इन दैट सेंस. सो आई ट्राइड डूइंग दैट, but it doesn't feel natural to me. हम्म। Because then the whole soul, for me at least, the soul of the project is gone. If I'm just chasing a cycle, कि जी अब ये आ गया मुझे कुछ बोलना है, अब वो आ गया मुझे कुछ बोलना है, अब इसने कुछ कर लिया तो मुझे कुछ बोलना है, yeah, then the soul is gone. I will say something when I feel I have something to say, A, and B, I will say something which I feel should be said, हम्म। right? So because पूरी दुनिया अगर कह रही है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी बोलूंगा. एंड आई फील मेरे को कभी कभी हेल्प क्या होती है कि क्योंकि मैं खेला हूँ एट व्हाटएवर लेवल, मैंने एनवायरमेंट्स देखे हैं, मैंने mentally I can sort of put myself in that place and understand what a team environment is like. Mentally I can understand when someone fails, or when someone is under pressure, when someone's place in the starting 11 is under pressure. I know what that feels like because I've seen other players do that and I've been there as well, whatever small capacity that might have. So I try to use that again. जो इतना भूसा भरा हुआ है इतने सालों से जो कर रहे हैं, इट डजंट गो वेस्ट. जब आप अपने बीच में एक, हमने ना एक जो चैनल के लिए काम करता था मैं, तो सबको एक रिट्रीट के लिए लेके गए कि जी रिट्रीट करते हैं ताकि एक साथ सिनर्जी आए और कंटेंट बने. हाँ?
2 दिन तक वो कॉर्पोरेट वाले बड़ा पैसा लेके गए होंगे उनसे, ओ बड़ी बकवासें करी उन्होंने, ओए होए होए होए, ओए होए लिट्टे चिट्ठे उट्ठे नोट वोट जो बन रहे बकवास। एंड मैंने वो यार, उन्होंने पूछा सो व्हाट डिड यू थिंक एंड यू हैव एनी सजेशंस, एवरीवन सब अपने सजेशंस दे रहे हैं। मेरा टाइम आया, मैंने कहा यार आप सब स्पोर्ट्स से प्यार करते हो इन दिस रूम, आई थिंक इट्स known fact. There's no Hmm. debate about it. Yes, yes, yes. I said, then how many of you, in your capacity, in your bubble, around in your life, are still playing sport on a weekly basis? No one. No one. Hmm. Then I said, how are you, if you're not putting yourself in those situations, how are you sitting on a TV screen and watching someone do it somewhere else, gauging and making the right call? कैसे कर रहे हो आप? Hmm. तो भाई जिस चीज के बारे में बात करनी है उसको एक्सपीरियंस करो ना, एट योर लेवल। मैं खेल रहा हूँ भाई, मैं कुछ ना कुछ खेलते रहता हूँ, मेरी जिंदगी का उसूल है, मैं बचपन से वो मेरी कहानी है, आई कांट लिव विदाउट प्लेइंग, राइट? तो अब मेरे घुटने उठने चले गए, मेरे ऑपरेशन हो चुके हैं, तो अब मैं पैडल खेल रहा हूँ। अब पैडल में क्या हो रहा है कि मैंने कभी रैकेट स्पोर्ट खेला नहीं, मैं जिंदगी भर फुटबॉल वाला बंदा हूँ। फुटबॉल में मेरी कहानी थी, मैं जहाँ जाता था एटलीस्ट अपने बबल में आई वाज द बेस्ट प्लेयर। तो मैं फर्स्ट नेम एंड आई एम ऑलवेज लुक्ड एट एज दैट। तो मैं अगर बॉल के साथ आ रहा हूँ तो मेरे पीछे जो बंदे हैं जो मेरे को लेने आ रहे हैं वो थोड़ा डर के आते हैं, अब 2 कदम पीछे रहते हो, यार ये अच्छा प्लेयर आया है, होता है कि नहीं है? Hmm. अब पैडल में हाँ. मैं नकली हूँ और वो पूरा कहानी हो गया। इट्स द फर्स्ट टाइम सीइंग इट, आई एम नॉट फेस्ड इट इन माय लाइफ, आई एम गोइंग, आई एम लूजिंग एवरीथिंग, मैं हार रहा हूँ, आई एम द वर्स्ट टीम ऑन द एंटायर प्लेनेट। और जहां भी खेलने जाता हूँ, अभी हम लोग गए मोहाली में, मेरे दोस्त, हमने वहां पे दारू ज्यादा पी होगी, मैच खेलने गए, मैच तो 2 मिनट में हार के बाहर आ गए हम लोग। और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यार भाई ऐसे फुटबॉल में तो कभी नहीं हुआ। सो दैट इमोशन, यू नेवर एक्सपीरियंस दैट इमोशन, Hmm. राइट? So how will you understand that if you don't experience it? How can you just sitting on a TV screen watching someone going through a duck, or someone whose place is under fire, or someone who's just scored 100? How can you even think of understanding what that person has done if you yourself don't experience that in some small way or the other, some Hmm. small form or the other, right? तो यार वो बहुत जरूरी है भाई, मेरे भाई, कि अगर आप स्पोर्ट की बात कर रहे हो और स्पोर्ट के बारे में रह रहे हो तो खेलो इन वट एवर फॉर्म कैपेसिटी। गली में खेलो, मोहल्ले में खेलो, ड्राइववे में खेलो, बट रेगुलरली खेलो। यू टू विल अंडरस्टैंड ऑन अ डे व्हेन यू फील एवरीथिंग इज फाइन दैट आप जीरो बना के जा रहे हो। होता है सर, उसका कोई हाँ. एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, मैंने सब कुछ किया है, मैंने नींद पूरी करी, मैंने खाना अच्छी तरह खाया, मैंने स्ट्रेचिंग करी, मैं वार्म अप गया, गया फर्स्ट बॉल ढक गॉन, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? अब जो नहीं खेला वो कहेगा अबे क्या नकली प्लेयर है, देखो क्यों भाई? यही तो चीज है, these are तो I realize these things and this helped me because I've been a part of sport all my life, so I channel that, I use that to my advantage, and so when I see things and I talk about it, I say कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में, सिंपल सी बात है। तो यार वही है मेरे भाई, मैं भूल गया, मैं इतनी ज्ञान दे रहा था, मैं सवाल ही भूल गया। आपने यही पूछा था कि आप कहीं और गए हुए थे सवाल को लेकर। हाँ, हमारा सवाल ये था कि क्या कंटेंट आप प्रेजेंट करना चाहेंगे। यार कंटेंट, I keep on asking that question. I haven't come to that answer, to be honest. I ask myself, what can I do that can be completely different? And because the easiest, you generally veer towards the easiest thing, right? So the easiest thing would be, आज इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई है, ये देखो ये मेरी एनालिसिस उसके बारे हाँ। में। I don't want to do that. I genuinely don't want to do that. Everyone is doing that. I'm not trying to look down on the other people, but I want to find something else, make my own niche. I feel sports can be presented about different things. So जो आपकी जो एक thought process है and your the reason you put this podcast together, which is that you want to be giving voices to the unheard in cricket, a Hmm. place which is getting a lot of love and limelight, but it doesn't mean you're hearing everyone's story. Hmm. Then that is a wonderful format and a wonderful cause to champion. पर वो ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं होगा, Hmm. उसके लिए आपको फील्ड पे जाना है। और फिर उसके लिए आपको फिर ये भेदभाव नहीं है कि ये खेला है रणजी एक मैच, ये फर्स्ट क्लास एक, वो नहीं। फिर हाँ. अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप रेगुलरली कॉर्पोरेट क्रिकेट खेल रहे हो, आप रेगुलरली गली मोहल्ले, आप उसकी कहानी चेज करो, बिकॉज Hmm. हिज स्टोरी एंड विराट कोहली स्टोरीज विल हैव पैरेलल्स, एंड दैट पैरेलल विल बी ऑन दैट लव फॉर द गेम,
His love for the game might make him do something else. His love for the game might make him do something else. But that love for the game is the constant between the two of them. भाई बड़ी डीप बातें हैं ये, हैं? बहुत डीप बातें हैं भाई. So I like going deep, यार. If that solves something, it comes naturally to me. I'm a मेरी बीवी खुद थोड़ी हैरान होती है मेरे साथ कि एक साइड पे मैं एकदम ही वो जो नहीं होता बच्चे, हाँ वो बच्चों वाली बातें. आई कनेक्ट अ लॉट विद माय किड्स दैट वे. तो मैं उनके लेवल पे आ जाता हूँ बहुत आसानी से, और एकदम से ठा इस तरह बाबा रामदेव. हाँ? तो वो मिडिल ग्राउंड नहीं है, बट दैट्स व्हाट आई आई लाइक. थिंक स्टोरी टेलिंग में यही चीज होनी चाहिए कि वो एक छोटे बच्चे का जो एक्साइटमेंट है एंड हाउ यू कैन आर्टिकुलेट कि वो मतलब एक मतलब क्या कहूँ स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें यस, ऑब्वियसली एक लेसन निकले वो हम शुरुआत से यू स्पॉट ऑन, देखते थे. स्पॉट ऑन. So, वैसे तो सर आगे बढ़ते हैं अब थोड़ी छोटे क्रिकेट की बच्चे बात. वाला आपने बहुत अच्छी बात बोली है भाई. हाँ अपना ना बचपना मेरे को विवेक राजदान ने बोला था हाँ एक बारी. वी वर डूइंग अ शो इन दुबई, और अभी फिर से जाना है. ILT20 एक टूर्नामेंट होता है, तो वहाँ पे मैं, क्योंकि वहाँ पे छूट है मुझे, तो वहाँ पे भरोसा है प्रोड्यूसर्स को मेरे ऊपर, क्या है नहीं कर रहा है, तो छूट है. जब मेरे ऊपर छूट है तो फिर ज़्यादा ही छूट ले लेता हूँ मैं. पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाता हूँ, मैं बकवास करते रहता हूँ इधर उधर. बिकॉज आई जेन्युइनली फील, अगर आप स्पोर्ट की बात कर रहे हो एंड टॉक अबाउट स्पोर्ट, डोंट डिसरिस्पेक्ट स्पोर्ट, पर अगर हंसी मजाक नहीं हो रहा स्पोर्ट्समैन के बीच में, तो क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है मेरे भाई. वो नेचुरली फनी लोग होते हैं स्पोर्ट्समैन. सही बात है सर मैं तो एक मैं कहीं ना कहीं. हाँ प्लीज प्लीज. हाँ जी, सॉरी, आप बताओ. हाँ मैं नो, एक सो ही एक्चुअली टोल्ड मी वेरी क्विकली, ही सेड वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट यू अर्जुन, इज दैट तुमने अपना बचपना नहीं खोया है. And keep that alive. Don't ever lose that. So it's true. I agree with you 100%. सर तो एक्चुअली मैं क्या बता रहा था मैं हम लोग एक बार स्कूल में मतलब मैं स्कूल टीम के लिए क्रिकेट खेलता था मैं मैच नहीं Hmm. खेला था. अंडर 19 दो मैचेस ही हुए थे क्योंकि हमें एक बाय मिला था एंड देन वी वेंट टू प्री क्वार्टर फाइनल्स दैट वी लॉस्ट. तो Hmm. अब मैं मुझे कुछ बैक में कुछ दिक्कत हो गई थी तो मैं नहीं खेल पाया था और वो तो कोच बहाना वगैरह. है, वो तो बहाना था. मतलब कोच को खिलाना भी नहीं था. कोच को खिलाना भी नहीं था ठीक है. तो अब हम लोग गए हुए थे और हम बुरी तरीके से हारे मतलब एक बंदा था जिसने ओए 192 होए. बनाए ओपोनेंट ने. ओ एंड भाई हाँ साहब. हाँ और हम हमारा टोटल 192 स्कोर था ऑफ हाउ मेनी बॉल्स? ऑफ 200 ऑट बॉल्स मतलब रन अ बॉल खेला था वो. 2 डे मैच हम्म. था वहां अच्छा, पर. 2 डे मैच, ओके. हाँ 2 डे मैच था. तो इसलिए हम लोग बुरी तरीके से हारे लेकिन बस में जब हम लोग जा रहे थे और बस में हम्म. जब हम लोग आ रहे थे ठीक है वो बचपना कहीं नहीं गया. हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं हेडफोन्स लगे हुए सबके सब ने स्पीकर चालू कर दिया नाच रहे. लेकिन जब हम हम्म. फील्ड पर थे तो सबके चेहरे देखने लायक थे इतनी बड़ी हार हुई थी. एंड देन व्हेन वी हम्म. वर ऑफ द फील्ड तो कंप्लीटली अलग लोग थे हम. तो वो एक चीज जरूर रही है क्योंकि आई मतलब आपने जो एग्जांपल दिया उसमें मैं ये रिलेट कर पाया. तो हम्म. अब आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू तो क्रिकेट. जब 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 घर गए, ये नहीं बोला आपके माँ बाप ने, आ गए नालायक? नाक मेरी कटवा मम्मी ने के. मुझे बोला कि भाई तू तेरे को खेल लेना चाहिए था ये सब क्या है यार. फिर मैंने तो कहा 192 नहीं, वो 200 बना लेता फिर. क्या बता. मैं था भी ऑफ स्पिनर और वो ऑफ स्पिनर को पेल रहा था तो वही हालत थी ओए मेरी. होए होए, अच्छा हुआ नहीं खेले मेरे भाई. कभी कभी भगवान देखते हैं सब. हाँ जी. बिल्कुल. तो सर अब एक सबसे बड़ा जो अगर हम क्रिकेट वर्ल्ड की बात करें हम्म. मतलब द आईपीएल ट्रांसफर विंडो हैज नॉट बीन एज एजाइल एज इट वाज दिस टाइम. रविंद्र या जडेजा काइंड ऑफ. संजू सैमसन. हाँ. हाँ मतलब I mean, आप just two trades ना, big trades. Yeah, how's it that heavy सर in बट that sense? इससे It's बड़ा just हमने a. कभी देखा नहीं है मतलब इवन वी सॉ दैट देयर वर 7-8 प्लेयर्स जो इधर उधर हुए मोहम्मद शमी हम्म. जडेजा हम्म. सैमसन डोनोवन फरेरा नीतीश नीतीश राणा राणा. या हम्म. Shardul Thakur. शार्दुल ठाकुर यस शार्दुल ठाकुर, अर्जुन तेंदुलकर. अर्जुन Hmm. वेंट टू लखनऊ. सो सर आप हम्म. कैसे देखते हैं इसको और डू यू थिंक फॉर अ टीम लाइक चेन्नई दैट इज हम्म. रन ऑन इमोशंस अपने स्टॉलवर्ट को टाटा बाय बाय कहना एंड टू ब्रिंग इन संजू सैमसन. I think it's a smart move. I think it's a very smart move. यार, out of see, चेन्नई की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहानी क्या है कि भाई आप धोनी को अलविदा कह सकते हो कि नहीं, और आप धोनी को अलविदा तभी कहोगे जब वहां पे जगह लेने वाला कोई आएगा. तो पहले आपने रविंद्र जडेजा के साथ ट्राई किया, हम्म नहीं चला. फिर आपने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ट्राई किया. फिर आपने देखा यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है, ऊपर से टीम में भी ज्यादा दम नहीं था.
Hmm. right? So Chennai has then, I feel, have found a very sorted replacement. It's not going to be easy because आते ही उसे रन बनाने पड़ेंगे, right? He is in that kind of, see, that's why I was looking at myself and मैं कहता है मैं इस पे बात करूं नहीं करूं. Ravindra, I feel the better of the trade has gone to Rajasthan Royals from the individual's perspective. That Ravindra Jadeja has gone into a space where he can afford the luxury to take time to settle in. यही होता है ना नई टीम में जब जाते हो, ऊपर से अगर आप कप्तानी भी दे रहे हो और आपके नीचे यंग लड़के हैं, तो मजा आएगा. वहीं दूसरा कट टू सैमसन. सैमसन बेचारे की कहानी ये रही है जिंदगी भर कि अच्छे परफॉर्मेंस के साथ फिर आप हर बार एक्सपेक्ट करते हो बड़े रन आएंगे बड़े रन आएंगे. सो ही इज ऑलवेज बीन चेजिंग दैट प्रेशर कि जी रन बनाने रन बनाने रन बना. अच्छा, ओ आज रन नहीं बनाए, वो आज रन बना दिए. तो अब चेन्नई में भी जाएंगे तो यही चल रहा होगा कि जी सैमसन रन बनाए, सैमसन रन बनाए, सैमसन रन बनाए, सैमसन कीपर बनेगा, सैमसन कीपर बनेगा, सैमसन को कप्तान का बनाओगे. अभी उन्होंने बोल तो दिया है ऋतुराज गायकवाड़. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ स्मार्ट मूव बिकॉज यू डोंट वांट टू स्ट्रेट अवे पुट सो मच प्रेशर ऑन द वन प्लेयर यार. Correct. वो है तो इंसान एट द एंड ऑफ द डे. और सैमसन की कहानी बताता हूँ मैं. आई थिंक कहाँ पे था, तो ही वाज प्लेइंग सम मैच फॉर केरला और मैं कुछ कर रहा था. ऐसे हे संजू व्हाट्स हैपनिंग. ही सेड हाय भैया कैसे हो. मैंने कहा भैया, हाँ? फिर तब पता चला कि हम बुड्ढे हैं. तो but this is long back and but he's a solid player when he gets going. And चेन्नई के बारे में आप कह रहे हो रन ऑन इमोशन. I don't agree with you on that. I think it's a very calculated team. अगर आप रन ऑन इमोशन हो ना तो आप लखनऊ सुपर जायंट की बात करो, क्योंकि वहां पे जो आपके चेक काट रहा है वो इमोशन पे चलता है, तो वो हर चीज में घुस जाता है. इट्स इमोशन, Yes. राइट? द इमोशन इज गेटिंग द बेटर ऑफ यू. चेन्नई इज द ऑपोजिट. इट्स पीछे ठहराव सर. यार एट द आपको यार जब आप इतने स्किल्ड बंदों को ला रहे हो, द बिगेस्ट डिससर्विस दैट यू कैन डू टू देम is to suddenly ask them to do a way to do things in your way. भाई अरे क्यों? The biggest service that you can do to them is to give them a space and saying go. This is your space, enjoy it, I have full faith in you. Results is a बाढ़ की बात की चीज है, कोई नहीं. But go explore, enjoy yourself. That is the best space to be, right? To enjoy as a sport. Agreed. So Chennai in that sense, I feel he's gone to a very sorted place. दूसरा जो ट्रेड आप बात कर रहे हो, I think Nitish Rana to Delhi is a good trade for me. नीतीश का स्टॉक देखो क्या गिरा है, हाँ, एकदम से. फ्रॉम इंडिया प्लेयर टू सडनली नाउ राजस्थान रॉयल्स में नहीं चढ़ रहा है. आई एम जस्ट थिंकिंग कि हमें लगता है कि इनको पैसे मिल रहे हैं, चलो ठीक है 4 करोड़ जो भी मिल रहा है, बट नीतीश राणा विल बी गोइंग इनटू द सीजन थिंकिंग अगर मैंने रन नहीं बनाए तो मेरा स्टॉक और गिरेगा, मेरे पैसे और कम होंगे. इन दैट सेंस, राइट? तो अगर आपकी एक लाइफस्टाइल है, चलो जैसे भी आप मैनेज उसको करते हो, पर चाहे आप करोड़ों में भी कमा रहे हो, 1 करोड़ अगर कम हो गया तो आप सोचते जरूर हो, दिमाग पे जरूर आता है कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं कैसे चलाऊंगा. So that pressure is going to be there on Nitish. So it's not an easy space. You just imagine he starts the season and he doesn't get to play too much. Then he gets that one opportunity to play and doesn't make runs. उसका सोचो यार भाई. ठीक है 4 करोड़ का चेक आ रहा है, पर वो तो आगे का सोच रहा है ना, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा. इंडिया टीम के लिए खेल नहीं रहा. इंडिया टीम के लिए अगर आप खेल नहीं रहे, एंडोर्समेंट्स इतने नहीं आते, तो देन it's not an easy space to be, man. Yeah. Any other trade? Which are the other big trades you guys were talking about? Shami, I don't what do you think think of him? Shami to Lucknow Super Giants, ना Yeah. यार. शमी को एकदम से बाहर कर दिया है टीम से, इंडिया टीम से. एंड समझ से येस और नो अग्रीड. आई टेस्ट में तो मैं नहीं देख रहा था कि इतनी जल्दी बाहर कर देंगे. वाइट बॉल से तो आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि ही विल बी आउट. शमी टू लखनऊ सुपर जायंट्स, यार उनका ना लास्ट सीजन कोई पेसर था ही नहीं ना. नहीं, सारे सारे इंजर्ड के सारे तो बंदे इंजर्ड हो गए. ऊपर से मयंक यादव का जो गैम्बल है वो नहीं चला है, बट दे डिसाइडेड टू शो फेथ इन हिम एंड they've kept him. I'm glad they've kept him because भाई वो प्रॉपर एक्स फैक्टर है यार वो बंदा. if you can bowl about 150, again the environment is what will get the best out of you. So having Shami there for Mayank Yadav will take some pressure off him. Imagine it's a very different thing when you have Mayank Yadav and Avesh Khan bowling. ठीक है, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों अपना नाम बनाना चाह रहे हैं,
but you have a Shami there on the other side, it changes the thing completely for the young boy. So from that perspective, I feel Shami का जो चयन हुआ है, and for Shami's perspective also, I think he's got a point to prove, which is always a good thing, right? Point to prove is also the most easiest thing to say. But अगर मेरे को आपको दिखाना है, it could go completely south for me, but at least that added zing, that added onus कि मैंने कुछ करना है तो मैं हर सुबह उठूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, मैं करते रहूंगा. That will keep me going for the IPL. So I feel yeah, it's a win-win for the player and the franchise. एंड वहाँ पे भरत अरुण भी कोचिंग स्टाफ का हिस्सा Oh, है तो sir, I got to spend time with Bharat Arun, in fact, in Bombay when we were हाँ doing India-England series, and he was doing, I think, he was doing the Tamil commentary. Yeah, Telugu. I think Telugu कर रहे थे, sorry Okay. वो तेलुगु कर रहे थे, and हम लोग हिंदी का करते थे, तो शाम को सब लोग एक साथ बैठते थे, and और भाई साहब उनकी जो सोच है ना, भाई साहब जो there when he would talk about his time as India bowling coach and the unit that he had, because that time जो fast bowling unit थी, ईशान था, शमी था, बुमराह था, उमेश सिराज यादव था, भुवनेश्वर उमेश कुमार यादव था, भुवनेश्वर भुवनेश्वर कुमार. कुमार अरे भाई साहब, it was just his. I remember one thing was my job. He had said, oh, I still remember this. He said, my job is to plant a seed in your head and then to make you believe that it's your idea. Tha? And then I'll keep telling you, no, but from your perspective. So I need to understand your language. I need to understand how you understand it. I need to understand how you imbibe information. It won't come by authority. ये है, ये करो. Oh, shutter बंद. Fuck off. Sorry, piss off. You can edit that out. नो वरीज, Huh? हम ऐसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. कोई नहीं, no worries. The point is, that's such a nice thing to say ना. वो top level में क्या होता है यार? I will plant a seed in your head, and then I need to convince you that that seed is good for you and it's your idea. No wonder, man. I mean, coaching is such a तो wonderful thing, ये भाई. दिस माइट वर्क ना, मतलब मोहम्मद शमी विद भरत अरुण एट लखनऊ सुपर जायंट्स, तो तो दिस यार ये इज तो मैंने वेरी सोचा ही नहीं था. हाँ, 100% क्या है. हाँ हाँ, वो तो भरत अरुण. हाँ, 100% भरत अरुण has a say in this. Then there's no doubt about it. And Bharat Arun, he used to speak so well of Muhammad Shami. Like he used to, like, his eyes would light up those 2-3 times that we sat with each other, all of us. And whenever he would talk about Shami, Lala, aankheं badi हुई, there was excitement on his face, there was emotion, there was love on his face, and you can see that on his face. Brilliant. एंड अनदर टीम मुंबई इंडियंस, उन्होंने मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट ट्रेड शायद पुल ऑफ कर दिए, बिकॉज दे गॉट Yeah, शार्दुल ठाकुर Shardul. एंड Why do you say best शर्फिन, trade? बिकॉज Safin शार्दुल Rutherford. ठाकुर, हाँ शर्फिन रदरफर्ड आ गए, और एक जो उनको स्पिनर चाहिए था मयंक मार्कंडे, वो भी आ गया है. दे रिलीज्ड करण शर्मा एंड Hmm. विघ्नेश पुथुर मेनली, और उनके पास सैंटनर भी है. तो ये सब, और उनको बहुत, मतलब ये सब प्लेयर्स डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट से शायद ऊपर ही जाते हैं ऑक्शन में जाते हैं, Hmm. तो Hmm. टू गेट देम इन ट्रेड विंडो वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज अभी That's a देर smart इज, move. हाँ बिकॉज अगर शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, सैंटनर ये सब खेले तो टिल They नंबर won't affect your 9. budget that much also, ना. इतना आपको बजट को हम्म, अफेक्ट भी नहीं होगा. हाँ पर उनके और पास ज्यादा टिल पैसे है नंबर, नहीं मेरे भाई, Mumbai टू बी will ऑनेस्ट. lose हाँ the वो ज्यादा auction in ऑक्शन the में दिखेंगे same नहीं बट, day. वाले आपको. हाँ उनका मतलब शॉर्ट है, उनका प्लेइंग 11 एंड बैकअप्स भी शायद मेरे हिसाब से तो शॉर्ट ही है. हम्म. तो No, Mumbai तो यार, there's a reason why Mumbai has done what Mumbai has done for so long. यार वो प्लेयर के बलबूते पे नहीं बनती. वो मैनेजमेंट होता है, वो एक कल्चर हम्म होता है. तो उसके बलबूते पे, एंड दे वेरी साउंड पीपल इन टर्म्स ऑफ जो एक्विजिशंस उनको करने हैं. आई फील दिस ट्रेड थिंग इज अ वेरी स्मार्ट थिंग, स्पेशली ट्रेड्स work a lot more before a mini auction. I feel हम्म like before a major auction ना, इतने trades आपको नहीं दिखेंगे. हम्म But before a mini auction, you'll see a lot of trades happening, and which is why you've seen one happening right now. I feel like अभी mini auction में भी, अभी अगर कोई, like, मैं आपको एक पंट मारता हूँ, मेरे को लगता है कि आंड्रे रसल is going to be the big draw in the mini auction, right? At 4 KKR, he's gone now. I feel Gujarat Titans हम्म and Andre Russell will be a match made in heaven. उनको फिनिशर चाहिए, रथवर्ड चले गया है. हम्म. Yes. आंड्रे रसल है, उनके पास एक फॉरनर स्लॉट है.
उनको खिलाड़ी चाहिए, और उनके पास आई थिंक 7-8 करोड़ या कुछ बचे हुए हैं, या ऐसे कुछ 12 है, 14 करोड़, समथिंग 12 समथिंग 12 12 12 12 समथिंग समथिंग, 12 something. हाँ Yeah. I feel Andre Russell could be a wonderful addition, and I've heard so many stories about that team, like the environment of that team. It is very, like, the player, the coaches, they shield them from outside noise. They shield them from Hmm. that thing that we were talking about right now, right? Yeah. They shield them from all of that. So the environment is such where the player is very free to express Hmm. themselves. It's like a very happy environment, especially when you have Ashish Nehra वहाँ पे हैं, Mehra तो ji. वो he champions that. He champions that, and I've seen it firsthand myself. So he champions that kind of an environment. The environment gets the better and makes the player do what he has to do. Because खिलाड़ी तो खिलाड़ी है भाई, वो कौन सा खेलना भूल गया है? वो नहीं खेलना भूला है यार, वो तो जिंदगी भर ये चीज करते हुए आया है, वो क्यों भूलेगा इतनी आसानी से? आपने तो बस एक माहौल बनाना है, उस माहौल में जाके मैंने इक्के दुक्के 3 चीज बोल देनी है आपको, अगर मैंने बोलना है Hmm. टू एक स्पेसिफिक पॉइंट, एंड देन यू गो एंड डू व्हाट यू डन। 8-9-10 करोड़ पे तो खरीदेंगे, तो हाथ पकड़ने के लिए तो नहीं खरीदेंगे ना। गलती लोग यही करते हैं कि आप 8-9-10 करोड़ का खिलाड़ी खरीदते हो, उसके बाद आप हाथ पकड़ के ये भी कहना चाहते हो लेफ्ट लो फिर राइट लो, फिर कभी सीधा जाओ, इट डजंट वर्क लाइक दैट। So that was all for today. We would दैट like वाज ऑल। uh, सॉरी यार, मैंने बहुत thank ज्ञान you दे दिया। thank you हाँ, for your time. So to our viewers, like, share and subscribe to our channel. And I'm sure जितना हमको ये conversation में मजा आया, आपको भी उतना ही मजा आएगा. So till then, take care and bye bye. Bye bye. thank you so much guys।